آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا سیکشن نمبر 9، سیکشن نمبر 10 اینڈ سیکشن نمبر 11۔ اگر ہم لوگ ٹیبل آف کانٹینٹ کی طرف آئے تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سیکشن نمبر 6، سیکشن نمبر 7 اینڈ سیکشن نمبر 8۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سیکشن 9 جو کہ ڈیل کرتا ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز سے، سیکشن 10 جو کہ کہتا ہے پنشمنٹ فار کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز، اینڈ سیکشن 11 جو ڈیل کرتا ہے امپوزیشن آف فائن۔ سیکشن 9 آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہمیں بتاتا ہے کہ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کیا ہیں۔ A holder of a public office or any other person is said to commit or to have committed the offense of corruption and corrupt practices. Subsection 1 پر کہتا ہے if he accepts or obtains from any person or offers any gratification directly or indirectly other than the legal remuneration as a motive or reward such as is specified in section 161 of the Pakistan Penal Code for doing or forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show in the exercise of its official functions favor or disfavor to any person or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person۔ کوئی بھی اگر پبلک آفس ہولڈر ہو یا کوئی اینی ادر پرسن ہو، کہا جائے گا کہ اس نے آفینس کمٹ کیا ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا اگر وہ کوئی کسی بھی شخص سے کوئی آفر یا گریٹیفیکیشن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وصول کرے جو کہ اس کی لیگل ریمونریشن یعنی کہ جو اس کی لیگل تنخواہ جاب ڈسکرپشن کے اندر اور جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہے اس کے علاوہ ہو، ایز اے موٹیو ایز ڈسکرائبڈ ان سیکشن 161 آف دا پاکستان پینل کوڈ، جو کہ سیکشن 161 آف پاکستان پینل کوڈ کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ جو ادر جو آفر اور جو گریٹیفیکیشن لے گا فار ڈوئنگ اور فار بیئرنگ ٹو ڈو اینی آفیشیل ایکٹ، یعنی اس ریوارڈ کو لینے کے بعد یا گریٹیفیکیشن کو لینے کے بعد وہ پبلک آفس ہولڈر کوئی آفیشیل ایکٹ کریں یا آفیشیل ایکٹ کرنے سے گریز کریں، اور فار شوئنگ اور فار بیئرنگ ٹو شو ان دا ایکسرسائز آف ہز آفیشیل فنکشن، یعنی کوئی کام اپنے آفیشیل فنکشن کے اندر کوئی کام کرے یا کوئی کام کرنا نہ کریں، فیور اور ڈسفیور ٹو اینی پرسن، یعنی کہ کسی پرسن کو وہ فیور دیں یا کسی پرسن کو وہ ڈس فیور دے، اور فار رینڈرنگ اور اٹمپٹنگ ٹو رینڈر اینی سروس اور ڈس سروس ٹو اینی پرسن، یا پھر کسی پرسن کو وہ اپنی سروسز رینڈر کریں یا پھر کسی پرسن کو اپنی وہ سروس نہ دیں۔ تو ان تمام کاموں کے پیچھے جو وہ ریوارڈ گریٹیفیکیشن یا ریمونریشن لے گا ادر دین ہز آفیشیل جو اس کی بتائی گئی ہے، تو اس کو پھر ہم لوگ کہیں گے کہ اس نے کمٹ کیا ہے آفینس آف کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز۔ سب سیکشن 2 جو ہے سیکشن 9 کا کہتا ہے if he accepts or obtains or offers any valuable thing without consideration، اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، obtain کرتا ہے یا آفر کر دیتا ہے ویلیویبل تھنگ، کوئی بھی قیمتی چیز ہو وداؤٹ کنسیڈریشن، اس کو آفیشیل نالج میں لائے بغیر، اور فار اے کنسیڈریشن وچ ہی نوز ٹو بی انایڈیکویٹ، یا پھر جو ہے جو قیمتی چیز ہو وہ کسی کو دے رہا ہو یا کسی سے لے رہا ہو آفیشیل اس میں نوٹیفائی کیے بغیر، اور اس کی قیمت بہت کم رکھ دے، فرام اینی پرسن whom he knows to have been or likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by him or having any connection with his official functions or any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned۔ تو تب بھی کہا جائے گا کہ اس پبلک آفس ہولڈر نے آفینس کمٹ کیا ہے کرپشن کا اور کرپٹ پریکٹسز کا۔ According to subsection 3 of section 9 of National Accountability Ordinance, if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use or for the use of any other person any property entrusted to him or under his control or willfully allows any other person to do اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر اس کو کوئی اگر پراپرٹی انٹرسٹ کی گئی ہو اور وہ اس کو فراڈنٹلی جو ہے کنورٹ کر لے اپنے نام پہ یا کسی اپنے دوست کے نام پہ یا کسی رشتے دار کے نام پہ، اور وہ پراپرٹی اس کے کنٹرول میں دی ہوئی ہو، مطلب اس کو انٹرسٹ کی ہوئی ہو فرام دا اسٹیٹ آف پاکستان، اور وہ ولفلی الاؤ بھی کرتا ہے کسی تیسرے بندے کو کہ وہ اس کو اپنے نام پہ کنورٹ کر لیں، تب بھی کہا جائے گا کہ اس پبلک آفس ہولڈر نے آفینس کمٹ کیا کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا۔
According to subsection 4 of section 9 of National Accountability Ordinance, if he by corrupt, dishonest, or illegal means obtains or seeks to obtain for himself or for his spouse or dependents or any other person any property, valuable thing or pecuniary advantage. सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर करप्ट, डिसऑनेस्ट और इलीगल मीन के थ्रू को अपने वो ऑब्टेन करें, मतलब अपने लिए अपने नाम के ऊपर कोई चीज़ ले या अपने स्पाउस के नाम पे कोई चीज़ ले या अपने बच्चों के नाम पे कोई चीज़ ले या किसी और अदर पर्सन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले, कोई वैल्यूएबल थिंग ले या कोई पैसों का फ़ायदा उठाए, तो तब भी कहा जाएगा कि उस पब्लिक ऑफिस होल्डर ने जो है ऑफेंस कमिट किया है करप्शन का एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का। सेक्शन 5 कहता है इफ ही और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स और बेनामेदार ओन्स, possesses or has acquired right or title in any assets or holds irrevocable power of attorney in respect of any assets or pecuniary resources disproportionate to his known source of income। अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर या उसे कोई डिपेंडेंट्स या बेनामेदार वो ओन करें, पोजेस करें और एक्वायर्ड राइट और टाइटल इन एनी एसेट, और कोई भी एसेट वो ओन करे या पोजेस करे या उसका राइट या टाइटल उस एसेट का उस पब्लिक ऑफिस होल्डर के नाम पे हो या उसके डिपेंडेंट्स के नाम पे हो या उसके बेनामेदार के नाम पे हो, या फिर जो है कोई भी पिक्यूनरी रिसोर्सेज यानी कि पैसों के कोई भी जो पैसों का एडवांटेज है वो उसके पास हो और वो डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज नोन सोर्सेज ऑफ इनकम हो, यानी कि उसकी तनख्वाह से वो मैच ना कर रहा हो। मतलब उसकी तनख्वाह अगर महीने की 1 लाख रुपए है और उसकी जो मतलब एसेट्स और ये सारी चीजें ये बहुत ज्यादा करोड़ों में है, तो ये मैच नहीं कर रहा, विच ही कैन नॉट रीजनेबली अकाउंट फॉर, और वो उसके बारे में बता भी ना सके। या फिर जो है अगर वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा मेंटेन करता है जो कि उसकी नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम के साथ मैच नहीं कर रही हो, तो तब भी कहा जाएगा कि इस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है करप्शन का एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का। सब सेक्शन 6 जो है वो कहता है इफ ही मिसयूजेस हिज अथॉरिटी और एज टू गेन एनी बेनिफिट और फेवर फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन or renders or attempts to render or willfully fails to exercise his authority to prevent the grant or redemption of any undue benefit or favor which he could have prevented by exercising his authority। According to section 6 सब सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है और वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करता है इन ऑर्डर टू गेन एनी बेनिफिट और फेवर फॉर हिमसेल्फ, या फिर वो अपनी अथॉरिटी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करता इस तरह से कि वो किसी को गलत बेनिफिट देने में रोक ना पाए, तो उस बंदे को भी हम लोग अंडर द परव्यू लेके आएंगे करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के। सब सेक्शन 7 कहता है इफ ही हैज इशूड एनी डायरेक्टिव पॉलिसी और एनी SRO statutory regulatory order or any other order which grants or attempts to grant any undue concession or benefit in any taxation matter or law or otherwise so as to benefit himself or any relative or associate or बेनामेदार or any other person। अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो कोई डायरेक्टिव पॉलिसी या SRO जो है टैक्स एक्सेम्पशन होती है जो FBR के अंदर मिनिस्टर्स या जो FBR के जो ऑफिसर्स है वो देते हैं, और वो अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर वो कोई डायरेक्टिव पॉलिसी या SRO इशू करे और उस इशू करने की वजह जो है पर्सनल बेनिफिट हो या किसी भी अदर पर्सन का बेनिफिट हो और हुकूमत और पाकिस्तान का फ़ायदा ना हो रहा हो, तो तब भी जो है ना हम ऐसी पॉलिसी और डायरेक्टिव और SRO को जो है अंडर द परव्यू लेके आएंगे करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के, और वो जो जिस शख्स ने ये पॉलिसी इशू की होगी उसको हम चार्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। सब सेक्शन 8 है वो डील करता है विलफुल डिफॉल्ट के साथ। इफ ही कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ अ विलफुल डिफॉल्ट अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कमिट करता है तो तब भी कहा जाएगा कि दैट पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। विलफुल डिफॉल्ट हम पीछे NAO ऑर्डिनेंस के अंदर पढ़ चुके हैं जो कि सेक्शन 5R है। विलफुल डिफॉल्ट बेसिकली ये होता है कि जब किसी शख्स ने किसी बैंक से या किसी सरकारी इदारे से कोई कर्ज लिया हो, कोई अमाउंट ली हो और फिर वो उसको वापस ना कर रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे विलफुल डिफॉल्ट। सब सेक्शन 9 जो है
if he commits the offense of cheating as defined in section 415 of Pakistan Penal Code 1860 and thereby dishonestly induces member of the public at large to deliver any property including money or valuable security to any person. सब सेक्शन 9 जो है कहता है कि अगर कोई पर्सन जो पब्लिक एट लार्ज को चीट करता है, और ये हमें डिफाइन हुआ है ये ऑफेंस सेक्शन 415 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, और फिर वो डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस मेंबर ऑफ पब्लिक एट लार्ज टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के मामले में या पैसों के मामले में या सिक्योरिटी के मामले में अगर कोई भी शख्स जो है पब्लिक एट लार्ज को चीट करता है तो उसको भी हम लोग कहेंगे कि दैट पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस. Subsection 10, if he commits the offense of criminal breach of trust as defined in section 405 of Pakistan Penal Code 1860 with regard to any property including money or valuable security entrusted to him by members of public at large. ये सब सेक्शन भी जो है पब्लिक एट लार्ज के साथ डील कर रहा है. मतलब कि अगर कोई भी बंदा जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब कि ट्रस्ट तोड़ दे एज डिफाइंड, और ये हमें इसकी डेफिनेशन गिवन है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है सेक्शन 405 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड विद रिगार्ड टू एनी प्रॉपर्टी, यानी कि वो डील कर रहा हो प्रॉपर्टी के साथ, मनी के साथ या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के साथ जो कि उसको दी गई हो बाय द मेंबर्स ऑफ पब्लिक एट लार्ज. इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जिस तरह कोई सोसाइटी अगर बनती है और कोई आदमी कहता है कि मैं सोसाइटी को बना रहा हूँ और इसके अंदर प्लॉट्स और जो है मैं बिल्डिंग्स बना के दूंगा, फिर पब्लिक आती है उसको पैसे जमा करवाती है उसके पास, और जब वो पैसे जमा हो जाते हैं बाद में वो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से 10 साल बाद जो भी उसने टाइम गिवन होता है गिवन किया हो पब्लिक को उस पर वो डिलीवर ना करें और वो भाग जाए, तो ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है और जो मेंबर्स ऑफ पब्लिक एट लार्ज है उनको चीट किया है. तो इस बंदे ने भी फिर इसको भी कहा जाएगा कि ये इस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का. सबसेक्शन 11, इफ ही इन हिज कैपेसिटी एज अ बैंकर, मर्चेंट, फैक्टर, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust as provided in section 409 of Pakistan Penal Code 1860 in respect of property entrusted to him or over which he has dominion. सबसेक्शन 11 ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन हो एज अ बैंकर, मर्चेंट, फैक्टर, ब्रोकर, अटर्नी और एजेंट और वो ब्रीच करे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 409 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के अंदर विद रिगार्ड्स टू प्रॉपर्टी जो कि उसको इंटरेस्ट की हुई हो, तो उसको भी हम लोग फिर कहेंगे कि ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस. सबसेक्शन 12, if he aids, assists, abets, attempts or acts in conspiracy with a person or a holder of public office accused of an offense as provided in clauses 1 to 11. जो हमने ऊपर क्लॉजेस पढ़े यानी सब सेक्शंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के सेक्शन के अंदर जो कि 9 जो सेक्शन 9 है, तो जो हम लोग अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, अगर कोई भी शख्स अक्यूज हो इन ऑफेंसेस का कि इन कामों के अंदर उसको अक्यूज किया गया हो कि उसने करप्शन किया और करप्ट प्रैक्टिसेस की है, और कोई और शख्स उसकी मदद करे, एड करे, असिस्ट करे, अबेट्स करे, गलत कामों में उसकी मदद करे, अटेम्प्ट्स और एक्ट्स इन कॉन्स्पिरेसी विद अ पर्सन और होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस अक्यूज ऑफ सच क्राइम, तो वो उस बंदे को भी जिसने मदद की होगी ऐसे शख्स की, तो उस बंदे को भी कहा जाएगा कि दैट पर्सन हैज आल्सो कमिटेड द ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस. अभी तक हम लोग सेक्शन 9 पढ़ रहे थे जो कि बताता है हमें करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है. इसका सब सेक्शन 1 या क्लॉज 1 हमें कहता है कि जब कोई शख्स ग्रेटिफिकेशन लेता है, ग्रेटिफिकेशन के साथ ये डील करता है. क्लॉज 2 हमें बताता है कि एक्सेप्टिंग एनी वैल्यूएबल विदाउट और विद लिटिल कंसिडरेशन. 3 हमें बताता है कन्वर्टिंग एनी एसेट फॉर प्राइवेट यूज. 4 इसका बताता है ऑब्टेन द आइटम फॉर रिलेटिव्स. 5 बताता है हैव एनीथिंग व्हिच ही फेल्स टू जस्टिफाई. 6 बताता है टू गिव एनी अनड्यू फेवर और फेल्स टू प्रिवेंट सच, टू इश्यू एनी अनड्यू एसआरओ, विलफुल डिफॉल्ट, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कि हमें डिफाइन हुआ है सेक्शन 405 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये वाला जो कि हमें बताता है सेक्शन 409 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड. तो ये थे हमारे पास कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगे, उनकी उन ऑफेंसेस की उन ऑफेंसेस को जिनको हम लोग कहेंगे कि ऑफेंस ऑफ करप्शन है, उनकी थोड़ी सी ये ओवरव्यू था. अब हम सेक्शन 9B की तरफ आते हैं.
All offences under this ordinance shall be non-bailable and notwithstanding anything contained in section 426, 491, 497, 498 and 561A or any other provision of the code or any other law for the time being in force, no court shall have jurisdiction to grant bail to any person accused of any offence under this ordinance. जो ऊपर ऑफेंस जो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि ये चीज़ें जो है ना कंसिडर होंगी ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर, तो ये तमाम ऑफेंसेस जो मतलब इस ऑर्डिनेंस के अंदर लिस्टेड हुए हुए हैं तो ये नॉन बेलेबल है, इन पे बेल नहीं दी जा सकती। और जो चीज़ें हमें बताई गई है 426, 491, 497, 498 और 4561A और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कोड के अंदर जो ये सेक्शन है इनके अंदर जो भी बात कही गई है तो इनको हम लोग नहीं लाएंगे इधर, इनको कंप्लीटली निगलेक्ट किया जाएगा और बेल नहीं दे सकती। And no court shall have jurisdiction to grant bail to any person accused of any offence under this ordinance. मतलब जो अक्यूज होंगे अंडर दिस ऑर्डिनेंस दैट इज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, तो इसके अंदर जो बंदा भी अक्यूज डिक्लेयर हो गया उसको कोई कोर्ट जुरिस्डिक्शन, किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि उसको वो बेल दे पाए। Section 9C. If after completing the investigation of an offence against a holder of public office or any other person, the chairman NAB is satisfied that no prima facie case is made out against him and the case may be closed, the chairman NAB shall refer the matter to a court for approval and for the release of the accused if in custody. अब अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और ये चेयरमैन नैब ये समझते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे किसी एक्यूज के खिलाफ कोई सबूत पूरे नहीं है और कोई केस नहीं बन सकता, तो फिर चेयरमैन नैब के पास ये पावर है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दे, और लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन की क्लोजर से पहले उनको रेफर करना पड़ेगा मैटर टू अ कोर्ट फॉर द अप्रूवल, कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और कोर्ट से अप्रूवल मिलने के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जाएगी और अगर कोई अक्यूज जो है कस्टडी में होगा तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 10 ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस बताता है कि पनिशमेंट फॉर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होगी। 10A. A holder of public office or any other person who commits the offence of corruption and corrupt practices shall be punishable with a rigorous imprisonment for a term which may extend to 14 years and with fine and such of its assets and pecuniary resources of such holder of public office or person as are found to be disproportionate to the known sources of his income or which are acquired by money obtained through corruption and corrupt practices, whether in his name or in the name of any of his dependents or binamedars, shall be forfeited to the appropriate government or the concerned bank or the financial institution as the case may be. जिस शख्स ने भी ऑफेंस कमिट किया होगा करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का और वो साबित हो गया कोर्ट में, तो फिर उसको जो सजा दी जाएगी वो इम्प्रिजनमेंट की दी जाएगी जो कि एक्सटेंड हो सकती है, जिसको मतलब मैक्सिमम 14 साल की हम लोग इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सकते हैं, साथ में उसे फाइन भी लग सकता है और जितने भी एसेट्स होंगे और जो पैसों वाले रिसोर्सेज होंगे, मतलब एसेट जो उसने बनाए होंगे जिनका ये नहीं पता चल रहा होगा कि इसकी नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से कैसे आए, या फिर जो है जो एसेट या पैसे जो उसने बनाए होंगे थ्रू करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, चाहे वो उसके अपने नाम पे हो, चाहे वो उसके डिपेंडेंट्स के नाम पे हो, चाहे वो बेनामेदार के नाम पे हो, तो वो सारे जो है ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ली हुई होंगी तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी जाएंगी, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट से ली होगी उसने तो वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दी जाएंगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ये मतलब है इधर। या फिर अगर वो किसी कंसर्न बैंक से उसने ली हुई हो, जिस तरह विलफुल डिफॉल्ट केस के अंदर होता है, तो वो उसको वापस कर दी जाएगी, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली जाएगी, जो भी केस होगा उसके मुताबिक उस गवर्नमेंट को दी जाएगी जिससे उसने वो रकम या एसेट बनाया होगा। 10B जो कहता है द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल टू दिस ऑर्डिनेंस शैल बी पनिशेबल इन द मैनर स्पेसिफाइड देयरइन। जो ऑफेंसेस इसके स्केड्यूल के अंदर लिस्टेड है तो उसके अंदर बताया गया है कि उनकी सजा कैसे है, तो उसी मैनर के अंदर जो है ना उस ऑफेंस की सजा दी जाएगी जो इसके स्केड्यूल के अंदर लिस्ट हुआ है। 10C. The federal government may by notification in the official gazette amend the schedule so as to add any entry thereto or modify or omit any entry therein. फेडरल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर
अगर उन्होंने स्केड्यूल को अमेंड करना हो, फेडरल गवर्नमेंट के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर जो स्केड्यूल गिवन है उसको अमेंड कर सकती है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सकती है, या कोई चीज़ उससे निकाल सकती है, या कोई चीज़ ऐड कर सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट यह है कि वो ऑफिशियल गजेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नोटिफाइड हो। सेक्शन 11 ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस इम्पोजिशन ऑफ फाइन के साथ डील करता है। वेयर एन अक्यूज फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इज सेंटेंस टू पे अ फाइन। जब भी कोई अक्यूज, जब वो गिल्टी होगा ऑफ एन ऑफेंस और उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा, तो द अमाउंट ऑफ द फाइन शैल इन नो केस बी लेस देन द गेन राइट बाय द अक्यूज और एनी रिलेटिव और एसोसिएट बाय द कमिशन ऑफ द ऑफेंस। तो जो अक्यूज ने जितना फायदा उठाया होगा उस ऑफेंस के जरिए से, तो जो फाइन इम्पोज उसके ऊपर किया जाएगा, तो वो फाइन की अमाउंट कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके गेन जो उस अक्यूज ने उठाया होगा, जो बेनिफिट उठाए होंगे, उसके इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, और ये डिटरमाइन करेगा कोर्ट जब उसके ऊपर फाइन लगाया जा रहा होगा। Damn. Yeah.